तो काम करते हैं। ये किस चीज का ग्राफ है बताओ। डायोड। डायोड। It is VI characteristic of a diode. Can you tell me from looking at the VI characteristics of any element, can you tell me whether the element is linear or non-linear? Active or passive? Yeah. Active or passive, unilateral or bilateral. Can you tell me these things from a VI characteristics of any element? Come on, tell me. Tell me this is linear or non-linear first. Sir, non-linear. How can we classify whether a graph is linear or non-linear? Tell me. How can you say whether the graph is a linear graph or non-linear graph? Sir, linear parameters কেটা change নহয় VNI কৰ What is a linear circuit? What is linearity? See, linear circuits can be modeled, can be linear elements or circuits can be modeled in mathematics as Y
is equal to mx. Am I right or wrong? Linear circuit can be modeled as y equal to mx. What is m? What is m? M is called anyone? M is called slope of the curve. M is the slope, y equal to mx. That means the change in y-axis divided by change in x-axis is equal to m. What is slope? It is the change in y-axis divided by change in x-axis. Are you getting my point? If the y-axis variable is the relation between y-axis and x-axis is such that it is the first order relation, then it is a linear circuit. Then it is a linear circuit. Am I clear? Now, if y equal to mx is the equation, so based on the value of x, y is changing, is not it? Based on the value of x, y is changing. So suppose m equal to 2, m equal to 3, m equal to 4, whatever it is. So I am considering, say, y is equal to, say, 4x. Now this is a linear equation, first order equation. So for x equal to 0, y is equal to also 0. It can be 0, it cannot be 0. If it is y equal to mx plus c, then it will start from c. Are you getting my point, everyone? Suppose y is equal to 4x plus 3. Then at x equal to 0, this is my x-axis. At x equal to 0, y is equal to, x equal to 0 means y equal to 3. Are you getting my point or not? Anyone? Yes, sir. Any confusion till now? अगर समझ में ना आए तो बोलना रे, ये समझना इंपॉर्टेंट है. किसी को इक्वेशन में दिक्कत है तो बताना. तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से. What I am trying to make you understand. A linear circuit is a circuit, or a linear element is the element that can be modeled in mathematics as y equal to mx plus c. Y equal to mx plus c. Now what these y, x, m, c mean to us? Y can be any variable that is plotted on y-axis. X is any variable that can be plotted on x-axis. Now I have plotted current in y-axis. I have plotted voltage in x-axis. So this is my VI characteristics. What else I can do? मैं और क्या कर सकता हूं? Suppose नॉर्मली मैं लेता हूं यहां पे एक्स एक्सिस पे मैं टाइम ले लूं, वाई एक्सिस पे मैं करंट ले लूं. सो इट इज करंट टू टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स, इज नॉट इट? सो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स,
लीनियर, अगर नॉर्मल फिजिक्स मैकेनिक्स मैकेनिकल में देते हैं, सपोज मैंने इस तरफ क्या ले लिया, डिस्टेंस, सॉरी टाइम ले लिया, एक्स एक्सिस पे क्या लिया, टाइम, वाई एक्सिस पे क्या ले लिया, डिस्टेंस। सो ये क्या बन जाएगा, डिस्टेंस टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, a linear circuit is such a circuit or a linear element, दोनों में अंतर है, एक है लीनियर सर्किट की बोल रहा हूं, एक लीनियर एलिमेंट की बोल रहा हूं, है ना। एलिमेंट मतलब कोई एक पर्टिकुलर सिंगल एलिमेंट, सर्किट मतलब बहुत सारे एलिमेंट मिलके उनमें कनेक्शन बना के हमने एक सर्किट बनाया। तो ए लीनियर सर्किट कैन बी मॉडल्ड इन मैथमेटिक्स एज y इक्वल टू mx प्लस c। तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन होने से हम बोलेंगे लीनियर सर्किट है। तो पहले मैंने लिया क्या, y इज इक्वल टू 4x। What can I get from this equation? If I put x equal to 0, then I will get y equal to 0. So x be 0, y be 0. If I put x is equal to 1, y is equal to how much? 4 into 1 means 4. X is equal to 2, y is equal to 2 into 4 is 8. X equal to 3, y is equal to 3 into 4 is 12. Now I plot here x equal to 1, so y equal to 4. Say 1, 1, 2, 3, 4. Now 1, 2, 3, 4. This is my x equal to 4. Y is equal to, sorry, x equal to 1, y equal to 4. X equal to 1, y equal to 1, 2, 3, 4. This much. X equal to 2, y equal to 8. X equal to say 2, y equal to 1, 2, 3, 4. So how then x equal to 3, y equal to 12. 1, 2, 3, 4. So how will the graph look like? ग्राफ कैसे जाएगा, कुछ इस तरह, ठीक है। Now I change what? I change this one. Suppose it is 2x. Then x equal to 0, y equal to again 0. X equal to 1, y equal to now, y equal to 2. X equal to 2, y equal to now, it is 4. X equal to 3, y equal to 6. So let's see, x equal to 1, y is equal to 2. So 1, 2. X equal to 2, y equal to 4. 1, 2. X equal to 3, y equal to 12. X equal to 3, y equal to 12. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, sorry. X equal to 3, y equal to 6. So 4, 5, 6. This one. Now see how the graph look like. हो रहा है। तो ये जो m का वैल्यू में चेंज कर रहा हूं, तो इसका क्या चेंज हो रहा है, इंक्लाइनेशन चेंज हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्लोप बोलेंगे, स्लोप। और स्लोप हमको बहुत सारा चीजें बताता है। पहला क्या बताएगा, पकड़ लो, ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक है, तो स्लोप ऑफ द कार कितना होगा, इसका स्लोप क्या बताएगा, बोलो, इसके स्लोप से क्या पता चलेगा, वी आई कैरेक्टरिस्टिक का स्लोप से क्या पता चलेगा तुमको। हाँ भाई बोलो। हाँ पकड़ लो, वाई एक्सिस पे क्या है, इट इज आई इज इक्वल टू क्या है,
2 इंटू एक्स, एक्स में क्या है, v है, तो 2 इंटू v। तो इसके स्लोप से मुझको क्या पता चला, अरे बोलो रे, स्लोप विल बी इक्वल टू व्हाट, आई बाई वी, आई डिवाइड बाई वी, आई बाई वी क्या हो जाएगा बोलो, स्लोप विल बी हियर, स्लोप विल बी आई बाई वी, change in y axis divided by change in x axis, this is the slope, so it will be delta I by delta v, or I can say I by v। I by v का मतलब क्या होता है, I by v का मतलब क्या होता है, अरे एनीवन, ओ यार ओम्स लॉ से देखो ना, v इज इक्वल टू क्या है, I इंटू आर, तो I by v इज इक्वल टू 1 by r, है कि नहीं, और 1 by r इज इक्वल टू व्हाट, इट इज कंडक्टेंस g, इट इज कंडक्टेंस। तो अगर मैं लिखूं v वोल्टेज इस x एक्सिस पे, करंट y एक्सिस पे, तो इसका जो स्लोप है वो क्या देगा मुझको, कंडक्टेंस देगा। अगर सेम चीज में करंट को प्लॉट कर दूं, करंट को प्लॉट करूं, सॉरी, करंट को मैं प्लॉट करूं x एक्सिस पे और वोल्टेज को प्लॉट करूं v एक्सिस पे, y एक्सिस पे, तो स्लोप कितना क्या बन जाएगा, स्लोप विल बी v बाई आई। तो v बाई आई इज इक्वल टू व्हाट, इट इज आर रेजिस्टेंस, v बाई आई इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, तो Yes, sir. स्लोप ऑफ vi characteristic will give you the resistance or conductance, slope of vi characteristic gives us resistance or conductance। if I is plotted in y axis, x is plotted in v axis, then it is I by v, so it is conductance। remember, स्लोप इज वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस। अब उसको प्लॉट करो और देख लो क्या निकलता है, ठीक है, पहली बात, यहां तक क्लियर है, स्लोप क्लियर हो गया, सर हाँ, सर ये जो इक्वेशन है उसमें m और x प्लस एस सी, सी मतलब क्या है? सी एक कांस्टेंट है, सी इज ए कांस्टेंट, पकड़ लो, पकड़ लो, मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, इसमें कुछ वैल्यू पुट करते हैं, से करंट आई इज इक्वल टू से 2 इंटू एक्स, एक्स एक्सिस पे मैंने वोल्टेज रख दिया v, प्लस से सी इज ए कांस्टेंट 4, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है मुझको एक्चुअली, व्हेन वोल्टेज इज जीरो, आई एम पुटिंग वोल्टेज इक्वल टू जीरो, व्हेन वोल्टेज इज जीरो, करंट आई इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू जीरो, जीरो प्लस 4, सो आई इज इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है, when voltage is 0 current is 4, when voltage is equal to 1, so 2 into 1 plus 4, 2 into 1 is 2, 2 plus 4 is 6, so current will be 6 ampere। say I am putting voltage is equal to 2, so 2 volt, 2 into 2 4, 4 plus 4 is 8, so current is equal to 8। इसका मतलब क्या हो रहा है, जब मैं 0 वोल्ट रख रहा हूं, जब मैं 0 वोल्ट रख रहा हूं तो करंट कितना है, करंट 4 है,
जब 1 वोल्ट बढ़ा रहा हूं इधर तो करंट कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। जब मैंने वोल्टेज 2 कर दिया, करंट कितना हो गया, 8 हो गया। तो मेरा ग्राफ किधर से जाएगा, द ग्राफ विल नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। 0 0 से नहीं जाएगा, कहां से जा रहा है, ओरिजिन से निकल जाए। और ओरिजिन कितना दूर है, 4, दिस कांस्टेंट 4। कि मैंने x को 0 कर दिया तब भी मेरा 4 एम्पियर करंट बच गया है, रेसिडुअल करंट यहाँ पे दिख रहा है। या फिर जो भी बोलो, इस पे यहाँ पे x और y की जगह पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, है ना। क्या थोड़ा बहुत मेरी बात समझ में आई, हाँ सर। नहीं आई तो फिर से और देखो, पकड़ लो। कॉपी करते हैं। हाँ, और बढ़िया से समझते हैं, मजा आया। पकड़ लो, मैंने एक्स एक्सिस पे मैंने वेलोसिटी टाइम लिया, वाई एक्सिस पे मैंने डिस्टेंस ले लिया। अब कोई भी चीज है जो डिस्टेंस चल रहा है, मूविंग है, तो वो समय के साथ क्या कर रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है इसका, है ना। तो समय के साथ उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो मुझको बताओ, इसका जो ग्राफ बनेगा, चाहे वो कैसा भी बने, लीनियर बने नॉन लीनियर बने, इसका जो ग्राफ बनेगा, उसका जो स्लोप होगा, पकड़ लो ये वाला ग्राफ मेरा ऐसा है। इसका जो स्लोप बनेगा, वो स्लोप से मुझको क्या पता चलेगा, कौन सा वेरिएबल पता चलेगा, इसके स्लोप से मुझको क्या पता चलेगा, बोलो। म्यूजिकल टू 1। एम इक्वल टू 1, एम कहा, इक्वेशन कहाँ दिया है मैंने, इक्वेशन तो यही नहीं है, एम कितना है कौन बोलेगा। ये हो सकता है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ इसके स्लोप से क्या पता चलेगा, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है सर वेलोसिटी। ना। थोड़ा सा स्पीड। स्पीड, एग्जैक्ट। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। भाई पर यूनिट टाइम पे मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वही तो स्पीड है ना। तो स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। अगर मैं इसको बोलता यहाँ पे कि वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बोलता तो वो होता तुम्हारा वेलोसिटी, है कि नहीं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो फिर उसका जो स्लोप है, उस स्लोप से मुझको वेलोसिटी का पता चलता। अगर ये डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस ग्राफ है तो उसके स्लोप से मुझको स्पीड का पता चल रहा है। अगर मैं वाई एक्सिस पे वेलोसिटी रख दूं तो क्या पता चलेगा, वेलोसिटी बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब स्लोप इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज, डेल्टा वाई, this is delta x. So change in y-axis divided by change in x-axis is the slope. So slope is equal to what? Change in y-axis by change in x-axis. अभी देखो, y-axis पे क्या है, वेलोसिटी है,
तो एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम डीवी dt, एंड इट इज इक्वल टू योर एक्सेलरेशन। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन देगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड देगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देगा, वेलोसिटी देगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। अब अगर ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास, सेकंड पॉइंट यहां तक क्लियर है कि नहीं, वो बोलो। स्लोप पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, वो बताओ Yes, sir. एवरीवन। चवें, स्लोप हाँ का सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सर। याद रहेगा, स्लोप मतलब कभी भी स्लोप आया दिमाग में तो समझ लेंगे वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस। अब देखो वाई एक्सिस पे कौन सा पैरामीटर रखा हुआ है, क्या स्पीड है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, करंट है, वोल्टेज है, कुछ भी हमने देखा भाई। वाई एक्सिस पे ये है, एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, जो भी पैरामीटर है उसको हमने नीचे लिखा। अब देखा कि दिस डिवाइडेड बाई दिस क्या दिखा था, वही मेरा स्लोप है। अगर यहाँ पे वोल्टेज होता, सॉरी यहाँ पे करंट होता और यहाँ पे वोल्टेज होता, तो स्लोप क्या हो जाता, वाई एक्सिस पे वोल्टेज है, एक्स एक्सिस पे करंट है v बाई आई, और v बाई आई इज इक्वल टू व्हाट, इट इज रेजिस्टेंस, v इज इक्वल टू आई इंटू आर। उल्टा करते, यहाँ पे वोल्टेज देते, यहाँ पे करंट लेते, तो क्या होता, आई बाई बी, आई बाई बाई बी इज इक्वल टू व्हाट, कंडक्टेंस 1 बाई आर, इसका रेसिप्रोकल 1 बाई आर, 1 बाई आर इज इक्वल टू जी, कंडक्टेंस। तो स्लोप ऑफ एनी कार गिव्स, स्लोप ऑफ एनी कार गिव्स y axis by change in y axis by change in x axis. So if it is, now it is clear. If it is distance time, if it is distance time, the slope gives, the slope gives speed. If it is displacement and time graph, the slope gives velocity. If velocity time graph, slope gives acceleration. If it is voltage by time current, then v by I is equal to R, resistance. If it is I by V, it is conductance, G. Now slope is totally clear for all of you. Am I right or wrong? Yes, sir. Okay. Next देखो, स्लोप समझ गए, स्लोप समझ गए, तो अब मैंने, मुझको, मैं कोई भी एक आर्बिट्रेरी ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू 4x प्लस, पहले लेता हूँ y इक्वल टू 4x। ये तो क्लियर हो गया, y इक्वल टू 4x होने से क्या होगा, दिस कार विल पास थ्रू origin, pass through origin, क्योंकि x equal to 0, if I put x equal to 0, then it is 4 into 0, so y is equal to also 0, so 0 0 हो जाएगा। Clear? If I put y equal to mx plus c, and c is say 5, so if I put x equal to 0, x equal to 0 means y is equal to 4 into 0 plus 5. So 4 into 0 is 0 plus 5 is 5. So y equal to 5. इसका मतलब कर्व कहां से शुरू हो रहा है, when x equal to 0, y equal to 5, तो कर्व यहां से शुरू हो रहा है। समझ में आया?
इस सी का वैल्यू, सी का मतलब क्या है समझ में आया? कांस्टेंट। एक कांस्टेंट जो ये बताता है कि जब तुम्हारा एक्स एक्सिस 0 है तो वाई एक्सिस कहां से शुरू हो रहा है। अब पकड़ लो, ये मैं बोलूं कि ये करंट वोल्टेज बाई करंट वी आई कैरेक्टरिस्टिक है, तो वोल्टेज जब 0 है तो मेरा करंट यहाँ पे कुछ रेसिडुअल करंट है 5 एम्पियर, वो समझा रहा है। अगर ये करंट एंड वोल्टेज है तो मैं बोल सकता हूँ कि जब मेरा करंट 0 हो गया तो यहाँ पे इतना वोल्टेज है। Am I clear, everyone? Slope is clear. This constant is clear now. Okay? यस सर। सोच के बताओ, कुछ सवाल है तो पूछो, क्योंकि ये काम में आने वाला है। So, and a linear circuit or linear element is such element or such circuit that can be mathematically modeled as y is equal to mx plus c. Now c might be 0 or c might have some value. If c has some value, that means it starts from some constant point in y-axis. This much clear. Okay. So for all linear circuit, the relation between this y-axis and x-axis is linear. That means it is a straight line, either passing through origin or might not be passing through origin, but it should be a straight line. It must be a straight line. Okay. So this type of graph is a linear characteristic. It shows a linear characteristics. What is non-linear characteristics? Non-linear means the relation between y and x, y-axis and x-axis, the relation between y-axis and x-axis is non-linear. That means either y is equal to say 4x square or plus something, or y is equal to say 5x cube plus x plus something. This type of relation is called non-linear. Second order or third order relation, these are called non-linear relationship. और उसमें जो कार्व आएगा वो कभी भी स्ट्रेट नहीं आएगा। हो सकता है वो कुछ जगह पे स्ट्रेट जा रहा है फिर वो जाके चेंज हो जा रहा है, तो दिस इज ए नॉन लिनियर कैरेक्टरिस्टिक्स। हो सकता है वो ऐसे ऐसे जा रहा है, नॉन लिनियर कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे चला गया, नॉन लिनियर कैरेक्टरिस्टिक्स, सीधा नहीं होगा। तो स्ट्रेट लाइन, linear characteristic means straight line passing through origin or may not be passing through origin. That will depend on the constant. If constant is 0, it will pass through origin. If there is a constant, it will not pass through origin, but it is linear. Am I clear? Yes, sir. Okay. So linear and non-linear. Linear circuit obeys number one, superposition. Law of additivity.
law of homogeneity क्या होगा? Sir, all of the above. Anyone else? Linear circuit obeys superposition. यहाँ पे क्या लिखा है? एडिटिविटी ओनली, होमोजेनिटी ओनली. So only homogeneity or only additivity does not replicate superposition. So a linear circuit is such a circuit that obeys principle of superposition. That obeys principle of superposition. Now, what is principle of superposition? Principle of superposition means the circuit that obeys both additivity as well as homogeneity. वो सर्किट जो एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी दोनों को क्या करे, माने, उसको हम बोलेंगे सुपरपोजिशन मान रहा है वो सर्किट. और जो सर्किट सुपरपोजिशन को मानेगा वो सर्किट क्या है? इट इज ए linear circuit. Now do you have any question on what is homogeneity, what is additivity, what is superposition, or everybody has understood this part? Sir, আৰু এবাৰ বুজাই দিব. See, my question was, linear circuit obeys superposition, additivity only, homogeneity only, all above. So I told linear circuit is such a circuit that obeys superposition. Now what is superposition? Superposition means additivity plus homogeneity. Now the question is, what is homogeneity and what is additivity? Homogeneity means if we multiply, or in engineering language I can say, if we scaled the input with some factor, then the result is, the output is also scaled by the same factor. Suppose I consider E1 as an input, and for E1 I am getting some response as R1. Okay, this can be anything. Suppose I am giving some voltage and I am getting some current. Okay, so this relation can be anything that I am giving as input and I am getting as response R1. Similarly, on the same circuit, if I put some other input as E2 and I get response R2, suppose. What I did? I have given some input as E1, I got the response as R1. I gave some input as E2, I got the response as R2. Okay. Now I scale up. Suppose I have increased the value of E1 as alpha into E1. I have scaled up, multiplied the input. Suppose मैंने क्या किया था, मैंने 100 वोल्ट सप्लाई किया तो मुझको सपोज 5 एम्पियर करंट मिला. फिर मैंने यहाँ पे 200 डबल कर दिया इसको, तो क्या होगा, करंट भी डबल हो गया. So if I multiply the input E1 by alpha and the response is also get multiplied by alpha, then we can say this circuit is obeying homogeneity. This circuit is obeying homogeneity.
होमोजेनिटी। समझ में आया? सिमिलरली इफ आई पुट बीटा टाइम्स E2 देन आई शुड गेट बीटा टाइम्स R2। ये दो सिस्टम है, सपोज इसमें E1 इनपुट से R1 मिल रहा है, इसमें E2 से R2 मिल रहा है। एंड जब मैं उसको स्केल कर रहा हूं अल्फा टाइम, तो ये अल्फा टाइम बढ़ रहा है, इसको बीटा टाइम्स कर रहा हूं तो ये बीटा टाइम्स मल्टीप्लाई हो जा रहा है। समझ में आया? तो ये क्या कर रहा है? दिस मीन्स इट फॉलोज लॉ ऑफ होमोजेनिटी। तो हम क्या बोल सकते हैं? होमोजेनिटी homogeneity if we scale the input by a factor, then the output is also scaled by the same factor. So this is homogeneity. So this is one part, homogeneity. How can we test? I am increasing the input, I am getting the output also to the same scale. Now if I combine these two, if I combine as E1 plus E2, अब मैं दोनों वोल्टेज को क्या कर रहा हूं? प्लस कर दे रहा हूं। देन आई शुड गेट द रेस्पॉन्स एज R1 plus R2. This is additivity. Similarly, scaled input as alpha E1 plus beta E2 must give me alpha R1 plus beta R2. समझ में आया? Yes, sir. दिस इज लॉ ऑफ एडिटिविटी। मैं अब क्या कर रहा हूँ? उसी चीज को फिर ऐड करके देख रहा हूँ, तो रेस्पॉन्स भी ऐड हो रहा है। मैंने स्केल किया तो रेस्पॉन्स स्केल हुआ बराबर, जितना स्केल मैंने किया इनपुट में उतना ही स्केल हुआ मेरे रेस्पॉन्स में। उसके बाद मैंने वो उस इनपुट को प्लस कर दिया तो रेस्पॉन्स भी प्लस हो रहा है। स्केल्ड इनपुट को प्लस कर दिया तो सेम स्केल्ड इनपुट ही मेरा स्केल्ड रेस्पॉन्स मुझको मिला प्लस करके। तो दिस इज लॉ ऑफ एडिटिविटी। और अगर ये दोनों चीज एडिटिविटी भी फॉलो किया, देन आई कैन से द सर्किट इज लीनियर। द सर्किट इज लीनियर। And if this does not follow, then the circuit is non-linear. पकड़ लो, तुमको कोई एक इनपुट एंड आउटपुट दे दिया, आप इनपुट को मल्टीप्लाई करो 2 से, आउटपुट भी 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। इनपुट को 5 से करो तो आउटपुट भी 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। फिर दोनों को प्लस करो और उसका जो स्केल्ड इनपुट है वो वही तुमको तुम्हारा रेस्पॉन्स आ रहा है, उस टाइप का अगर मॉडल है, देन दिस सर्किट इज ए लीनियर सर्किट। So for our own purpose, we need not to do this kind of things, isn't it? What we should remember, हमको क्या याद रखना है? हमको याद रखना है कि भाई लीनियर सर्किट वो सर्किट है जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करता है। लीनियर सर्किट इज सच सर्किट। हमको सिर्फ ये बात याद रखनी है, लीनियर, उतना सारा चीज समझाने के पीछे मेरा मकसद यही था। एक तो तुमको समझ में आए, जब समझ में आएगा तो याद रहेगा, है ना? अगर समझ में ही ना आए तो याद नहीं रहेगा। तो ए लीनियर सर्किट इज सच सर्किट दैट obeys
principle that obeys principle of superposition. And what is principle of superposition? That is, the circuit obeys both law both law of homogeneity and additivity. बोथ होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी को जो सर्किट फॉलो करेगा वो सर्किट क्या होगा, वो सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा और वो सर्किट को हम बोलेंगे लीनियर। तो लीनियर सर्किट को पकड़ने का दो तरीका मैंने तुमको सिखाया, एक थ्रू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और दूसरा थ्रू ग्राफ। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, अगर ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये लीनियर सर्किट है। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये नॉन लीनियर सर्किट है। Am I clear? बोलो। Yes, sir. किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? देख लो, सोच लो और बताओ। तो अभी तक का लेक्चर में हमको ये समझ में आया कि भाई एक ग्राफ जो होता है, एक कर्व होता है, जो हम लोग करेक्टरिस्टिक कर्व बोलते हैं। करेक्टरिस्टिक बोलते बोलते हैं ना, वीआई करेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करो। वीआई करेक्टरिस्टिक कर्व क्या कहता है इसका, हाँ, मशीन्स में हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक कर्व। तो वो क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स कर्व से हम लोग को रिलेशन पता चलता है दो अननोन वेरिएबल के बीच में। वेरिएबल क्या है, वोल्टेज करंट हो सकता है, तो ये वीआई करेक्टरिस्टिक कहलाएगा। वीआई करेक्टरिस्टिक्स का जो स्लोप होगा वो या तो रेजिस्टेंस देगा या फिर कंडक्टेंस देगा। अगर मेरा वाई एक्सिस पे करंट है, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है, तो स्लोप जो होगा वो होगा आई बाई वी, और आई बाई वी का मतलब होगा कंडक्टेंस जी 1/r। तो स्लोप ऑफ द कर्व विल गिव कंडक्टेंस। अगर इधर आई है इधर भी है तो स्लोप गिव्स रेजिस्टेंस। देखो ये सारी बातें आप लोगों को ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी बेसिक थिंग्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिव एंड पैसिव। बताओ, व्हाट इज एक्टिव एलिमेंट, व्हाट इज एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट? Sir, active elements are power generating and passive are power absorbing. Okay, so I write as here active and, so according to you, active is power
generating. Passive is power absorbed. So this can be battery, cell, or generator. Everything is active, is that it? And this can be your resistance, inductance, capacitance, or resistor, inductor, capacitor. This is your passive elements, है ना। एलिमेंट की बात करें तो देखो दो चीज होती है, एक तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मिक्स, कि एक एलिमेंट दूसरा सर्किट, हम लोग दोनों ही बात करते हैं ना, कि एक्टिव एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि एक्टिव पैसिव एलिमेंट, एक्टिव सर्किट की बात कर रहे हैं कि पैसिव सर्किट की बात। नाउ टेल मी, रेजिस्टेंस तो ठीक है, नो डाउट इट इज पैसिव। एक इंडक्टर है, इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी। इंडक्टर क्या करता है? इट स्टोर्स एनर्जी एंड देन रिलीजेस द सेम एनर्जी। कैपेसिटर क्या करता है? इट स्टोर्स एनर्जी एंड देन अगेन releases the same energy. Can anyone tell me the form of energy that an inductor stores? एक इंडक्टर किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, वेरी गुड। एंड कैपेसिटर? चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हो तो एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो ये कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब पकड़ लो, हमने क्या किया, कैपेसिटर को चार्ज किया और फिर उसको किसी चीज में लगाया, तो उसने क्या किया, एनर्जी सप्लाई। डिस्चार्ज। तो वो एक बार चार्ज हो रहा है, दूसरी बार फिर से एक बार वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी को, और अगली बार वो सप्लाई कर रहा है। तो ये कैपेसिटर एंड इंडक्टर पैसिव में रखेंगे कि एक्टिव में रखेंगे? क्योंकि दोनों सप्लाई भी कर रहा है, पावर जनरेटिंग और एलिमेंट दैट सर पैसिव। सप्लाई पावर, ये क्या है, एब्जॉर्ब पावर। एक ही बात है, पावर एब्जॉर्बिंग, मैंने यहाँ पे पावर या तो जनरेट कर रहा है या फिर बोलो तो अगले इसमें कि सप्लाई कर रहा है, पावर सप्लाई कर रहा है। तो कैपेसिटर जो देख रहे हैं वो भी तो सप्लाई कर रहा है, इंडक्टर भी सप्लाई कर रहा है। तो कैपेसिटर एंड इंडक्टर एक्टिव होगा कि पैसिव होगा? सर पैसिव। क्यों? सर फाइनाइट टाइम के लिए ही देता है ना वो। वेरी गुड। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक्टिव एलिमेंट आर सच एलिमेंट दैट सप्लाई पावर फॉर इन finite or long period of time। लंबे समय के लिए अगर पावर सप्लाई कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे या एक्टिव सर्किट बोलेंगे। अगर शॉर्टर टाइम के लिए सप्लाई कर रहा है, तो शॉर्ट टाइम के लिए सप्लाई कर रहा है और लॉन्ग टाइम के लिए एब्जॉर्ब कर रहा है, देन इट इज पैसिव, देन इट इज पैसिव। ठीक है। कैपेसिटर में क्या होता है, तुम लगाओ तो चुप करके वो चार्ज होता है, तो चुप करके वो डिस्चार्ज भी हो जाता है ना। Am I clear?
can deliver finite, sorry, एक्टिव क्या करेगा, कैन डिलीवर इनफाइनाइट और लार्ज एनर्जी। मोटे तौर पे बड़ा ज्यादा एनर्जी अगर कैन डिलीवर infinite or large amount of energy for longer or infinite period of time, वो तो लिखा हुआ है। इसमें क्या होगा, कैन डिलीवर फाइनाइट और स्मॉल एनर्जी फॉर स्मॉलर अमाउंट ऑफ टाइम। Am I clear? Yes, sir. Active element can process or amplify the सिग्नल। सिर्फ पावर जनरेटिंग नहीं, अगर वो सिग्नल को क्या कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है या फिर प्रोसेस कर रहा है, तो वो क्या है, एक्टिव एलिमेंट है। पैसिव एलिमेंट कैन नॉट प्रोसेस और amplify. Now it is clear? Yes, sir. जैसे कि मैं कुछ एलिमेंट लिखता हूं, रेजिस्टेंस, डायोड, ट्रांजिस्टर, ओप-एम्प, वैक्यूम डायोड, वैक्यूम ट्रायड, इंडक्टर, कैपेसिटर। इनमें से आपको एक्टिव और पैसिव आइडेंटिफाई करना है। एक्टिव कौन कौन है, पैसिव कौन कौन है। और भी डाल देते हैं, और भी डालते हैं। जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर। चलो बताओ, इसमें से कौन कौन एक्टिव में आएगा, कौन कौन पैसिव में आएगा। एक एक करके चलते हैं। रेजिस्टेंस क्या है, एक्टिव और पैसिव। रेजिस्टर पैसिव है सर। पैसिव होने से मैं व्हाइट मार्क कर रहा हूं, ठीक है। डायोड, डायोड पैसिव है सर। ट्रांजिस्टर, एक्टिव। सर पैसिव। ट्रांजिस्टर एक्टिव है कि पैसिव है। एक्टिव। एक्टिव है क्योंकि ट्रांजिस्टर क्या कर सकता है, इट कैन प्रोसेस द सिग्नल। ठीक है, ट्रांजिस्टर को क्यों यूज करते हैं हम लोग, एम्पलीफाई करने के लिए करते हैं ना।
हाँ सर ट्रांजिस्टर इज यूज, करंट हो वोल्टेज हो उसको क्या बीजेटी यूज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ओपन, एक्टिव एक्टिव, इट कैन प्रोसेस द सिग्नल। वैक्यूम डायोड, पैसिव इट इज ऑल्सो एक्टिव। ओ ये क्यों सर वैक्यूम डायोड एक्टिव। इंडक्टर पैसिव कैपेसिटर पैसिव पैसिव। जनरेटर पैसिव एक्टिव एक्टिव ट्रांसफार्मर, पैसिव ट्रांसफार्मर इज पैसिव। सर ये Why वैक्यूम डायोड और ये why transformer is passive? because it's Sir, it does not amplify the signal. Yes, because the power remain constant in transformer. Power remain constant in transformer. ट्रांसफॉर्मर में क्या रहता है? पावर, इनपुट पावर, पावर चेंज होता है क्या नहीं ट्रांसफॉर्मर में? द पावर इन is equal to power out. So it is not changing the power. So power remain constant. Thus, transformer is a passive device. Bilateral passive device. Bilateral, इधर से दो दोनों सिग्नल सेम है। चलो यूनिलैटरल बाइलेटरल में तो आया नहीं अभी, बट स्टिल दिस इज अ बाइलेटरल पैसिव डिवाइस। डायोड इज ए यूनिलैटरल पैसिव डिवाइस। यूनिलैटरल, चलो यूनिलैटरल और बाइलेटरल के बात कर लेते हैं। व्हाट इज यूनिलैटरल एंड व्हाट इज बाइलेटरल? व्हाट इज यूनिलैटरल एंड व्हाट इज बाइलेटरल? हाँ भाई, क्या समझ में आता है यूनिलैटरल में और बाइलेटरल में? यूनिलैटरल, चलो लिख लेते हैं इसको भी, यूनिलैटरल एंड बाइलेटरल। Unilateral circuits or elements are those elements that do not possess same resistance, that do not, लिख लो, unilateral elements or circuits are those circuits or elements those do not offer same resistance to the current, same resistance to the current in either direction, in either direction, जैसे अपना डायोड। दिस इज ए यूनिलैटरल एलिमेंट, इट डू नॉट possess same resistance from either side। इधर से रेजिस्टेंस कुछ होगा, उधर से रेजिस्टेंस कुछ अलग होगा, है ना? What is bilateral? Those elements that possess same resistance to current in either direction of the, in either direction। जैसे अपना रेजिस्टेंस, आप करंट इधर से दो या इधर से दो, रेजिस्टेंस रिमेन सेम। इंडक्टेंस, capacitance, these are bilateral elements। even transformer,
आप इनपुट इधर से दो कि इधर से दो, उसका रेजिस्टेंस सेम रहेगा, उसमें चेंज नहीं आ रहा है। ओके, सो दीज आर यूनिलेटरल बाइलेटरल। क्लियर हो गया? यहाँ पे देखो, रेजिस्टेंस बाइलेटरल, डायड यूनिलेटरल, है ना। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर क्या होगा? यूनिलेटरल और बाइलेटरल। ट्रांजिस्टर क्या होगा बोलो? यूनिलेटरल की बाइलेटरल? यूनिलेटरल। ओपन, सी ऑल, लिख लो, ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, नहीं नहीं, ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइस यूनिलेटरल नहीं है ना, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लिख सकते हो, ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एक्सेप्ट, all semiconductor devices except junction diode, except junction diode are active elements. All semiconductor devices except junction diode are active elements. Be it your क्या कहते हैं, बीजेटी, फैट, मॉसफेट, एससीआर, देन योर ओपेम, है ना, जेनर डायड, टनल डायड, सारे के सारे क्या है हमारे, ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर एक्टिव एलिमेंट्स एक्सेप्ट जंक्शन डायड। सिर्फ जंक्शन डायड पैसिव एलिमेंट पे आएगा, क्योंकि वो सिग्नल को प्रोसेस नहीं कर सकता है। क्लियर? ऑल वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स जैसे कि वैक्यूम डायोड, वैक्यूम ट्रायड, वैक्यूम पेंटोड, और गैस ट्यूब्स, all gas tubes, gas diode, or your thyratron, these all devices are active elements. तो पैसिव एलिमेंट में क्या मिलेगा? आरएलसी, जंक्शन डायोड, देन योर ट्रांसफॉर्मर, ये सब पैसिव एलिमेंट। Am I clear everyone? Clear? Yes, sir. तो एक्टिव और पैसिव में क्या क्या देगा? एक तो टाइम के बेसिस पे कि टाइम सोर्स is greater than time sink, means it is active, and time source is less than time sink, that means passive। जैसे कैपेसिटर में टाइम सोर्स, वो सोर्स बन के जितना टाइम रहेगा उससे जल्दी वो सिंक बनते हैं। जैसे हमारा पकड़ लो रिचार्जेबल बैटरी, रिचार्जेबल बैटरी पकड़ लो, एक रिचार्जेबल बैटरी जब चार्ज हो रहा है तो वो क्या करता है? पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, आपने सप्लाई लगा दिया, एडाप्टर लगा दिया, मोबाइल फोन को चार्ज कर रहे हो, तो चार्ज कर रहे हो मतलब क्या? अब वो पैसिव एलिमेंट है, वो क्या कर रहा है? चार्ज, पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, और फिर क्या करता है?
वो सोर्स की तरह काम कर रहा है, पावर कट हो गया वो दे रहा है। तो टाइम सोर्स बैटरी के केस में क्या हो गया, टाइम सोर्स इज ग्रेटर देन योर टाइम सिंक, तो दिस इज एन व्हाट एक्टिव एलिमेंट। समझ में आया? बहुत सारी बातें कर रहा हूं मैं, एक्टिव पैसिव लीनियर नॉन लीनियर यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल। ठीक है, अब लास्ट पार्ट बचता है कि क्या हम एक ग्राफ से, लास्ट पार्ट मतलब जहां से शुरू किए थे वन के आगे, क्या ग्राफ देख के मैं सारी बातें बता सकता हूं कि नहीं बता सकता हूं? तो अभी आई होप यू पीपल कैन आंसर द क्वेश्चन। पकड़ लो, सबसे पहले ग्राफ कौन सा ले? ये किसका ग्राफ था? अपना जंक्शन डायड है ना, वी आई characteristics. This is called forward junction, forward bias. This is my reverse bias, है कि नहीं? तो जैसे फॉरवर्ड बायस में हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, एक पॉइंट के बाद क्या होगा, करंट पूरा शूट करेगा और वो शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा, रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट। रिवर्स बायस मोड में क्या होगा, वोल्टेज बढ़ा घटाएंगे घटाएंगे घटाएंगे, एक टाइम पे जाके क्या होगा, वो ब्रेक डाउन ले लेगा, एवलांच ब्रेक डाउन, लेकिन वो करंट को पास होने नहीं देगा, रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस शो कर रहा है कि नहीं? सो फ्रॉम दिस ग्राफ व्हाट कैन वी इन्फर, जैसे कि क्या क्या शो करेगा, दिस डायोड इज linear or non-linear, linear or non-linear from graph, Non-linear. non-linear, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो हम लिखते हैं इसको नॉन लिनियर। यूनिलैटरल है कि बाइलैटरल है? कैसे पता चलेगा कि यूनिलैटरल है कि बाइलैटरल है ग्राफ से? अगर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट या फिर सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो ग्राफ आ रहा है वो अगर सिमेट्रिक है, सेम है, तो हम क्या बोलते हैं, ये बाइलैटरल है। और अगर ये दोनों ग्राफ सेम नहीं है तो ये यूनिलैटरल है। तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ जो है वो क्या सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो क्या होगा, वो यूनिलैटरल। क्योंकि देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या है, डिफरेंट रेजिस्टेंस दिखा रहा है, इसीलिए तो वोल्टेज के साथ करंट का जो रिलेशन है वो चेंज हो गया ना। यहाँ पे समझ में आ रहा है? यहाँ पे वोल्टेज 1 है तो फिर करंट 1 है, यहाँ पे वोल्टेज जब सपोज 10 है तो फिर करंट यहाँ पे 20 है। यहाँ पे देखो वोल्टेज 1 है तो करंट 0 ऑलमोस्ट, वोल्टेज 10 है तब भी करंट ऑलमोस्ट 0। तो रेजिस्टेंस चेंज हुआ ना, V बाई आई कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया ना। हस्ता ईशा शबांग, समझ में आ रहा है? तो ग्राफ देख के हम बोल सकते हैं अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ सेम दिखता है तो बाइलेटरल, सेम नहीं दिखता है तो यूनिलेटरल, है कि नहीं? और क्या बोल सकते हैं, क्या इस ग्राफ से, ग्राफ देख के मैं बोल सकता हूं कि ये एक्टिव है कि पैसिव है? क्या ये एक्टिव है कि पैसिव है? क्या मैं ग्राफ देख के बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? बताओ। अगर मेरा ग्राफ अगर मेरा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो दिस इज सिंक, दिस इज
sink, this is source, this is source. सिंक मतलब क्या है? पैसिव। सोर्स मतलब हो गया एक्टिव। पैसिव क्या करता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एक्टिव क्या करता है? एनर्जी को सप्लाई करता है। अब एनर्जी जो एब्जॉर्ब करेगा उसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो रेजिस्टेंस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और सोर्स जो होगा उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस कैसा होगा? निगेटिव होगा। ठीक है। अब हमको पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? V बाई आई। V इज इक्वल टू आई इंटू आर, है ना? V बाई आई। या फर्स्ट क्वाड्रेंट पे देखो वोल्टेज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में वोल्टेज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ये ओरिजिन है तो ये साइड वोल्टेज पॉजिटिव है ना? दिस साइड इज पॉजिटिव, दिस साइड इज नेगेटिव, दिस साइड इज पॉजिटिव, दिस साइड इज नेगेटिव। यही तो है कार्टेशियन, तो पता है ना तुम लोगों को। तो वोल्टेज इस तरफ जा रहा है मतलब क्या है? पॉजिटिव है, तो वोल्टेज इज पॉजिटिव। करंट ऊपर जा रहा है इसका मतलब करंट इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो रेजिस्टेंस क्या आया? पॉजिटिव बाई पॉजिटिव इज पॉजिटिव। रेजिस्टेंस पॉजिटिव मतलब क्या है? सिंक है। सेकेंड क्वाड्रेंट पे आते हैं। वोल्टेज क्या दिख रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट पे? नेगेटिव। तो वोल्टेज इज नेगेटिव एंड करंट इज पॉजिटिव, है ना? करंट इज सेकेंड क्वाड्रेंट पे क्या है? इस क्वाड्रेंट पे करंट पॉजिटिव है और वोल्टेज मेरा नेगेटिव है कि नहीं? ओ यार तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। यस सर। ओके। सो रेजिस्टेंस क्या हो गया? वोल्टेज इज नेगेटिव दिस साइड, करंट इज पॉजिटिव दिस साइड। तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव क्या आएगा? नेगेटिव आएगा आंसर। तो रेजिस्टेंस इज नेगेटिव इन दिस क्वाड्रेंट। रेजिस्टेंस नेगेटिव मतलब क्या है? सोर्स है। थर्ड क्वाड्रेंट पे देखते हैं। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज इज नेगेटिव, वोल्टेज इज नेगेटिव। करंट क्या है? करंट इज नेगेटिव। सो माइनस बाई माइनस क्या हो गया? पॉजिटिव। रेजिस्टेंस पॉजिटिव किसका होता है? सिंक का होता है। रेजिस्टेंस पॉजिटिव पैसिव एलिमेंट का है। यहां पे देखो वोल्टेज पॉजिटिव, वोल्टेज पॉजिटिव, करंट क्या है? नेगेटिव। तो क्या हो गया? नेगेटिव। तो रेजिस्टेंस जहां नेगेटिव मिला वो मेरा सोर्स बन गया। नेगेटिव मिला रेजिस्टेंस तो सोर्स बन गया। पॉजिटिव मिला रेजिस्टेंस तो वो सिंक बन गया, पैसिव एलिमेंट बन। तो मैं क्वाड्रेंट देख के कि मेरा जो ग्राफ है वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है, फोर्थ पे आ रहा है, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन से क्वाड्रेंट पे आ रहा है वो देख के मैं बोल सकता हूं कि ये एक्टिव एलिमेंट है कि पैसिव एलिमेंट। अब बताओ, सारा चीज मैंने बता दी। उफ, एक बार समराइज करेंगे ग्राफ देख के कैसे हम यूनिलेटरल बाइलेटरल बोल सकते हैं, कैसे हम एक्टिव और पैसिव बोल सकते हैं, कैसे हम लीनियर और नॉन लीनियर सर्किट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है कि नहीं? पहला हम देखेंगे क्या कि जो ग्राफ है क्या वो स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो वो लीनियर है, स्ट्रेट लाइन नहीं है तो फिर नॉन लीनियर। पहला बात। दूसरा बात, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ या फिर थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का ग्राफ अगर सिमेट्रिक है तो वो क्या है? बाइलेटरल है। मतलब वो जो
किसी भी साइड से रेजिस्टेंस जो है वो क्या दिखा रहा है, सेम रेजिस्टेंस दिखा रहा है। सिमेट्रिक होगा तभी ना, जब दोनों साइड से चाहे करंट इधर से दो चाहे करंट उधर से दो तो सेम रेजिस्टेंस शो करेगा, तो वो बाइलेटरल होगा। अगर सिमेट्रिक नहीं है तो वो यूनिलेटरल होगा। समझ गए? लीनियर नॉन लीनियर। और अगर मेरा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो पैसिव एलिमेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट पे है तो पैसिव एलिमेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट पे है तो फिर वो एक्टिव एलिमेंट है। तो अभी देखो डायरेक्ट क्या हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट पे आया तो ये एक पैसिव। ओके एवरीवन? यस सर। ओके, तो आज यहाँ पे खत्म करता हूँ। अच्छा, एक छोटा और एक टॉपिक डिस्कस कर लें, छोटा सा टॉपिक है, लंप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। लंप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बोलो, एलिमेंट बोलो। लंप सर्किट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट बोलने से क्या समझ में आता है बताओ? लंप मतलब अलग अलग है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। लंप मतलब गोटा गोटा टुकड़ा, है कि नहीं? तो लंप सर्किट एलिमेंट अगर मैं बोलूं, लंप सर्किट एलिमेंट अगर बोलूं, लंप सर्किट एलिमेंट्स कैसे बोल सकेंगे? इफ द voltage or current do not change with the dimension, if the voltage and current do not change or do not vary with the dimension of the element, with the dimension of the element or circuit, then this is called lump circuit elements। जैसे कि आपका रेजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, अलग अलग से, कैपेसिटर हो गया। वो जो है एक रेजिस्टर जब बन गया, उसका डायमेंशन के ऊपर बेस करके ना आपका करंट बार बार वेरी नहीं कर रहा है। सर्किट पे लगा देंगे जहाँ पे जो जिसका उस क्या कहते हैं इसको, किसी भी एक सर्किट पे, सर्किट कितना भी बड़ा हो जाए, रेजिस्टेंस अगर 500 ओम का रेजिस्टेंस है तो 500 ओम ही रहेगा, और उसका जो करंट और वोल्टेज होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड? डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट एलिमेंट्स जिसमें वी एंड आई क्या हो जाएगा, डायमेंशन के साथ, सर्किट के डायमेंशन के साथ वो वोल्टेज एंड करंट चेंज हो जाएगा। जैसे आपका ट्रांसमिशन लाइन पे रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, अब ट्रांसमिशन लाइन है तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड रेजिस्टेंस मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस मिलेगा यहाँ पे, है ना? तो दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट, यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट चेंजेस विद डायमेंशन, voltage and current changes with dimension. Lump voltage and current do not vary with dimension of the element. Am I clear? Someone asked me about this lumped and distributed circuit, है ना? अभी क्लियर है? हाँ सर। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब
It is, you cannot separate this. You cannot separate the element. जैसे रेजिस्टेंस है वो पूरा का पूरा एंटायर सर्किट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपेसिटेंस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे हम लोग अलग कर सकते हैं। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसको अलग अलग कर सकते हैं, किसी एक सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, देखते हो ना, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, उसको हम खोल के निकाल सकते हैं, वो लंप्ड है। और ट्रांसमिशन लाइन पे कैसे निकालोगे, वो तो पूरा फैला हुआ है, जैसे जैसे आप डायमेंशन बढ़ाओगे घटाओगे तो उसका वैल्यू जो है वो बढ़ रहा है घट रहा है, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड बोलेंगे। ठीक है। व्हाट इज वन पोर्ट एंड टू पोर्ट नेटवर्क और एलिमेंट, वन पोर्ट और टू पोर्ट एलिमेंट्स? वन पोर्ट और टू पोर्ट एलिमेंट्स क्या है? वन पोर्ट एलिमेंट क्या है, टू पोर्ट एलिमेंट क्या है? One port element are those elements which have two terminals to connect with the circuit. Two port elements are those elements which have four terminals or two ports to connect with the circuit. समझ में आया? और कुछ छूट तो नहीं गया? तो आज के लिए यहाँ पे खत्म करते हैं। हमने आज डिस्कस किया लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलैटरल, बाइलैटरल, पैसिव, एक्टिव सर्किट, कार्व को समझने की कोशिश की, ग्राफ को समझने की कोशिश की कि किसी भी एक ग्राफ से क्या मैं लीनियर, नॉन लीनियर बोल सकता हूँ, एक्टिव, पैसिव बोल सकता हूँ, यूनिलैटरल, बाइलैटरल बोल सकता हूँ। इसको एक बार रिवाइज कर लेना इस लेक्चर को अपलोड होने के बाद, और अपना अपना नोट्स भी बना लेना उसके हिसाब से। हमने देखा कि कोई भी जो इक्वेशन जो मिलता है हमको, उस इक्वेशन से ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं, और उस इक्वेशन का मतलब क्या होता है। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर है, सबका पावर पावर अगर 1 है, तो ये एक लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर रिलेशनशिप होने से ये एक स्ट्रेट लाइन होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, जिसमें c जो है वो कांस्टेंट है। वो बताता है कि जो ग्राफ है मेरा वो ओरिजिन से नहीं जा रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यू वेरिएबल मैंने रखा है उसका वैल्यू अगर 0 है, तो वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है वो 0 नहीं है, वो कहीं उसमें कुछ रेसिडुअल बच जा रहा है। सिमिलरली एम स्लोप होता है, स्लोप को हम लोग कैसे देखेंगे, वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस बाई चेंज इन एक्स एक्सिस इज स्लोप। तो किसी भी ग्राफ का स्लोप से हम पता कर सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस हो कि कंडक्टेंस कितना होगा, वो अभी आप लोग ग्राफ से निकाल सकते हो, है कि नहीं? और फाइनली हमने बात किया लीनियर सर्किट सुपरपोजिशन थ्योरम फॉलो करता है। जो सुपरपोजिशन मतलब एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी होता है। होमोजेनिटी का मतलब है कि इनपुट को जितना स्केल करेंगे आउटपुट भी उतना ही स्केल अप हो जाए। एडिटिविटी मतलब दोनों को ऐड करेंगे इनपुट को, तो जो रेस्पॉन्स मिल रहा है उसको स्केल करने के बाद भी सेम टू सेम रेस्पॉन्स मिलता है, तो वो सर्किट लीनियर सर्किट कहलाता है। फिर हमने देखा कि जो ये है क्या कहते हैं इसको, एक्टिव एलिमेंट क्या होता है और पैसिव एलिमेंट क्या होता है। यूनिलैटरल और बाई ओके एवरीवन, चलो आज के लिए इतना काफी है, कुछ ज्यादा डोज हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। खतरनाक, सबसे बड़ा गलती तुम लोग भी नहीं बोला है,
आज का लेक्चर हमने रिकॉर्ड नहीं किया, इंपॉर्टेंट लेक्चर था। सर रिकॉर्ड रिकॉर्ड दिखा रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है?